is F-test. Before we talk about F-test, first of all we have to learn what is significance test. And before we learn about significance test, we have to know what is the meaning of significance. In simple language, if we see the meaning of significance, then its meaning is something very important. But when we talk about significance in statistics, its meaning is totally changed. Like we are providing evidence about something when new method is proposed, new observations are collected, new data is collected, new experiment is performed. Here is an example. New analytical method was proposed. Then its results are compared with accepted method that was used earlier. A comparison was seen. If the result of both methods are different, then we reject null hypothesis. If their results are same, they are significant difference is not present between them, then we accept null hypothesis. F-test points include, which we discussed today, are history related to F-test, how to calculate standard deviation and variance, F-test to compare two variances, and two-tailed F-test, and also how to reject and accept null hypothesis. At the end we also see assumptions of F-test. So first of all we see the history of F-test. Why there is need to propose F-test? The basic purpose is to check for the difference among sample variances. Two variances values we have, then it must be compared if they are significantly different or not. That's why F-test was proposed. Next, who proposed this? Who named it? F-test was named by George W. Sanyderkow. He proposed this to check if there is difference between the results of two population or not. Then apply it maybe two-tailed test or one-tailed test. F-test is used for many purposes, like for comparison of two variances, for analysis of variance in ANOVA, for multiple regression. But here we only discuss comparison of two variances. Here is the definition for F-test. In F-test, it tells us that standard deviation of two sets of data are statistically different or not. Means we have two values of standard deviation and we have to apply significant test to check whether there is difference between these two values, these two results or not. When we are applying F-test, so some things that we must know how to calculate them. Like when we are applying F-test, we have to know how to calculate mean, how to calculate variance, standard deviation, what is formula to calculate F-test, how to calculate the value of F-test and with tabulated value. At the end, we have to conclude our answer by rejecting or accepting null hypothesis. Here is formula of mean, variance, F-test formula. So here is a little about this formula. We discuss it thoroughly in next slides. F-test is defined in the form of variance and variance of two data, and variance is the square of standard deviation. Here is an example of F-test. If we are given with standard deviation values, then we follow this step. Otherwise, we follow this step when values of variance are given. When values of standard deviation are given, this is standard deviation 1, 9.6, and this is standard deviation 2, 10.9. And as we know, what is the formula of standard deviation?
this is the formula to find standard deviation. But here in F test we find the result in the form of variance. So by taking square on this formula, here we take the square root on this formula and this square root is cancelled with this square, and this is now cancelled. Now the formula is changed and it is converted into variance. Now it is more easily understand. 9.6 was our standard deviation 1, and here 9.6 we take square on it, and this is answer will be equal to 92.16. As same, standard deviation 2 is 10.9, also we take square on it, and the answer is 118.81. We do this step when we are available with standard deviation values. Now if the values of variance are already given, then we do not take square on our values. We directly put these values in our formula, which is F is equal to standard deviation 1 square, standard deviation 2 square, and the value is 9.4 of variance 1, and the value of variance 2 is 2.5. But here is seen S1 is 2.5 and S2 is 9.4. So, but we take S1 9.4 and S2 take 2.4. This is the reason that we take bigger value in numerator and smaller value in denominator. सिर्फ और सिर्फ बड़ी वैल्यू को न्यूमिनेटर और छोटी वैल्यू को डिनोमिनेटर में लेने का मकसद सिर्फ यही है कि हम टू टेल टेस्ट अप्लाई कर सकें, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन करना इजी होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट टेल और टू टेल टेस्ट। ये मैं आपको बता चुकी हूं कि हमने लार्जेस्ट वैल्यू को न्यूमिनेटर और स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिनोमिनेटर में क्यों रखना होता है। सिर्फ यही वजह होती है कि हम राइट टेल टेस्ट अप्लाई कर सकें, क्योंकि लेफ्ट टेल टेस्ट जो होता है उसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है, या टू टेल टेस्ट होता है उसको भी कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू राइट टेल टेस्ट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करनी होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमारे पास सम टाइम दोनों वेरिएंसेस की दी होती है और सम टाइम सिर्फ एक की दी होती है, तो हम दोनों के साथ सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं। एक सैंपल 1 की हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरी सैंपल 2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो है हमारे पास DF is equal to n minus 1. n is the number of observation in both sample separately. लाइक वेरिएंस 1 हमारे पास है, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 थी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वेरिएंस 1 सैंपल 1 के लिए हमारे पास जो आई है वो हमारे पास 9 होगी। इसी तरह वेरिएंस 2 जो होगी उसके लिए भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर आएगा एफ टेस्ट के फार्मूला को अप्लाई करने से उसको हम कंपेयर करेंगे एफ टेबुलेटिव वैल्यू के साथ, और अब उसको फाइंड कैसे करेंगे वो हम आगे फर्दर देखेंगे एक न्यूमेरिकल के थ्रू, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। फिर उस बेस पे हम रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। अगर हमारी वैल्यू जो है कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर देन आ गई है तो उस हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और अगर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से लेस देन आई है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये कहेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मेथड्स। अब जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आई है उसके थ्रू हम टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टेबुलेटेड वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास n1 हमारे पास n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सैंपल 1 कंसीडर करते हैं, वो हमारे पास है 10,
और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है हमारे पास 15। सो हमने इसको टेबल में कैसे देखना है वो मैं आपको बताती हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 10 है, उसको हम रो वाली साइड पर देखेंगे। ओके, V1 का जो सैंपल है उससे जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आई है वो हम इस साइड पर देखेंगे, और जो हमारे पास सैंपल 2 है उसमें हमारे पास जो वेरिएंस आई डिग्री ऑफ फ्रीडम है DF2 वो हम कॉलम वाली साइड पे देखेंगे। तो DF1 हमारे पास क्या है 10 है, ये हमारे पास आ गया 10, और DF2 हमारे पास क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम वो है हमारे पास 15। तो हम इस साइड से 15 वाले से आगे बढ़ेंगे 10 तक। सो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 2.54 आ गया। मीन्स हमारे पास जो टेबुलेटेड वैल्यू आएगी वो हमारे पास 2.54 आई है, जिसको हम कंपेयर करेंगे अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ। न्यूमेरिकल के थ्रू करते हैं, इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा। टू फाइंड द कंटेंट ऑफ ग्लूकोज a new method is proposed which is compared with the method which was used earlier. So here is a numerical that we solve in detail. This is new method and this is the method which was used earlier. अब हमारे पास सैंपल मीन वो है 127, उन्होंने हमारे पास मीन आ गए, इन सबको कैलकुलेट। यहाँ पे हमारे पास ये सैंपल 1 है और ये सैंपल 2 है। जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो हमारे पास ये है सैंपल 1 का, और डेटा कलेक्ट किया गया सैंपल 2 से वो हमारे पास ये है। सो काउंट करते हैं इसको। हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगी n आएगा, वो उनको काउंट करने से आएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 मीन n हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया, और सैंपल 2 में हमारे पास n है 1 2 3 4 5 6। सैंपल 2 में हमारे पास n है 6, while that in sample 1 number of observations are 7। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमने मीन कैसे फाइंड करना है। हम मीन कैसे फाइंड करते हैं, एक्स बार कैसे फाइंड करते हैं। जो सारा हमारे पास डेटा है उसको ऐड करेंगे, टोटल डेटा को। इस सारे डेटा को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया है 891, जिसको हमने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, वो हमारे पास है 7। ये हमने इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया है आंसर 127 आ जाएगा हमारे पास x1 बार। इसी फॉर्मूले के थ्रू हमने x2 बार मीन भी फाइंड किया तो हमारे पास आया 128 आंसर आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वो हमारे पास है x1 माइनस x मीन को सब्ट्रैक्ट कर देना है x1 के साथ। वो हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्या है 127 हमारे पास x1 है और मीन हमारे पास है 127। जब 127 को माइनस करेंगे 127 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 0 आएगा। फिर उसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास फर्स्ट है, 0 का स्केयर लिया वो भी हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह सारे पे ये अप्लाई करेंगे और हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी। इधर उसका फिर उन वैल्यूज का स्केयर लेंगे और स्केयर लेके सबको सम कर देंगे। जो सम करने से हमारे पास आंसर आएगा वो सारी वैल्यूज को सम अप किए तो हमारे पास आंसर आ गया 50। सेम प्रोसेस हम सैंपल 2 पे भी अप्लाई करेंगे। उसका मीन हमारे पास है, उस मीन को हम x2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर जो आंसर आएगा उसका स्केयर लेंगे और फिर सारा प्रोसेस करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 24। अब हमारे पास दोनों सैंपल्स के हमने ये वैल्यूज निकाल ली हैं। अब सिंपल है, वेरिएंस के फार्मूले में इन वैल्यूज को पुट करेंगे। ये हमारे पास 50 आई है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 7 थी। 7 माइनस 1 किया तो 6 आएगा। 50 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 8.3 एंड दूसरे सैंपल का आंसर आ जाएगा सेम प्रोसेस से 4.8। एफ का हमें फार्मूला पता है, एफ का फार्मूला हमारे पास होता है S1 वेरिएंस 1 ओवर वेरिएंस 2। इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की। वेरिएंस 1 हमारे पास क्या आई है 8.3 आई है और वेरिएंस 2 हमारे पास क्या आई है 4.8 आई है।
डिवाइड करने से आंसर हमारे पास आया 1.73। नाउ कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई है एफ की, वो है 1.73। अब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू तो आ गई 1.73, लेकिन हमारे पास एफ टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड हमने करनी है, तो वो हम फाइंड कैसे करेंगे? एफ टेबुलेटेड वैल्यू को हम फाइंड करेंगे हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम से। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे फाइंड करेंगे? डी एफ इज इक्वल टू n माइनस 1। सैंपल 1 में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 7 माइनस 1 हमने किया तो हमारे पास आंसर आया 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर फर्स्ट डेटा इज 6 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सैंपल 2 इज 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास दो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आ गई हैं, DF1 DF2, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर फर्स्ट सैंपल हमारे पास क्या आई थी? 6 आई है, तो हमने उसको देखना है। V1 हमारे पास 6 आ गया, ये है हमारे पास 6, और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वेरिएंस 2 डेटा इज 5। 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, सो ये दिस इज 5। अब हमने इसको देखना है, हमारे पास एफ टेबुलेटेड वैल्यू क्या आई है? वो हमारे पास आई है 4.95। ये हमारे पास आ गई टेबुलेटेड वैल्यू। टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास 4.95, टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई 4.95 और कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 1.73। अब हम देखेंगे कि 1.73 हमारे पास लेस देन है 4.95 के। हमने पीछे क्या देखा था कि अगर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन होगी टेबुलेटेड वैल्यू के, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अब हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है और हमें ये पता चला है कि हमारा जो डेटा कलेक्ट किया गया दोनों सैंपल से, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। There is no significant difference between both methods and null hypothesis is accepted. अब टू टेल्ड एफ टेस्ट आ गया। टू टेल एफ टेस्ट में सिंपल है, सारा वही प्रोसेस है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो ये डिफरेंस है कि जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू होगी वो डिवाइड हो जाएगी 2 के साथ, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है ना। अल्फा की वैल्यू अगर हम 5% पे कर रहे हैं, वो हमारे पास है 0.05 और उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0025। टू टेल में हम ये ग्राफिकली देखा जाए तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू थी वो 5% थी। अब उसको डिवाइड कर, ये हमारे पास दोनों साइडों पे लाई कर रहा है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अगर ये राइट टेल्ड होता या लेफ्ट टेल्ड होता तो हमारे पास सारा जो अल्फा की वैल्यू वो यहाँ पे लाई करनी थी, लाइक 5%। बट नाउ इट इज टू टेल्ड टेस्ट, तो दोनों को डिवाइड कर दिया गया, 5% को डिवाइड किया गया दोनों साइडों पे। 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.025, और ये दोनों साइड पे चांसेस हैं अल्फा के। टू टेल टेस्ट को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जिसमें डेटा गिवन है वेरिएंस 109.63 एंड सैंपल साइज इज 21। वेरिएंस 2 भी दिया हुआ है और इसका सैंपल साइज भी दिया हुआ है। स्टेप 1 में हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट लिखेंगे। नल हाइपोथेसिस में नो डिफरेंस इन वेरिएंस, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ वेरिएंस। देन फाइंड which critical value of f or calculated value. To find the f calculated value, we know that the formula is s1 square or s2 square. 109.63 is divided by 65.99, then we find our value f calculated value, which is 1.66. now in next step we find degree of freedom. डिग्री ऑफ फ्रीडम V1 हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे और V2 हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। वी नो द व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, विच इज n minus 1. So 21 minus 1 is equal to 20 and 41 minus is equal to 41 minus 1 is equal to 40. अब हम इसको टेबल में देखेंगे, लेकिन एक चीज का ख्याल जो हमें रखना होता है वो सबसे ज्यादा ये होता है कि अगर हमें ये पता होना चाहिए हम कौन सा टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम टू टेल्ड अप्लाई कर रहे हैं तो हमने एफ टेस्ट को की टेबुलेटेड वैल्यू को फाइंड करने के लिए टू टेल्ड
टेस्ट टेबल यूज करना है। टू टेल टेस्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 V1 हमारे पास आई थी 20 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 V2 हमारे पास आई है 40। तो इसको हम इसकी वैल्यू को जस्ट देखेंगे, रो वाले साइड पर आते हैं तो इस साइड पे ये वैल्यू आ गई है 20 के बिल्कुल नीचे, वो हमारे पास आई है 2.0877। ये हमारे पास f की टेबुलेटेड वैल्यू आ गई, जिसको हम कंपेयर करेंगे f की कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ। अब हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई थी वो 1.66 थी और अभी हमने जो टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड किया वो हमारे पास है 2.287। कंपैरिजन करेंगे दोनों का तो हमें पता चला है कि 1.66 इज लेस देन 2.287 और हमें ये पता है कि जब कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन होगी टेबुलेटेड वैल्यू के तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इससे हमें क्या पता चला है कि दोनों मेथड जो यूज हो रहे हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मेथड्स। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया और अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। इट्स मीन देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन बोथ मेथड्स दैट वी यूज। अब हमारे पास जो एग्जम्पशंस आई हैं सारा प्रोसेस देखने के बाद वो हमारे पास ये है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन मीन होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। हमने देखा है 1 टेल टेस्ट है, 2 टेल टेस्ट है, राइट साइडेड है, लेफ्ट साइडेड है, तो वो उसकी जो शेप होती है वो बेल लाइक कर्व होते हैं ना, तो इसका मतलब वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो हमारे पास सारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे या वेरिएबल्स होंगे। नेक्स्ट वेरिएंस जो हमारे पास है ये हमने पहले ही देख लिया कि लार्जर वेरिएंस जो है हमारे पास न्यूमिनेटर में जाएगी और जो स्मॉलर वेरिएंस होगी वो हमारे पास डिनोमिनेटर में जाएगी। इसको ऐसे रखने की वजह सिर्फ यही है कि हम राइट टेल अप्लाई कर सके टेस्ट, क्योंकि बाकियों को कैलकुलेट करना इजी नहीं होता एज कम्पेयर टू राइट टेल टेस्ट। और हमने ये भी देखा अगर 2 टेल टेस्ट है तो वो उसको जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी उसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे और हमारे फिर फर्दर प्रोसीजर करेंगे, बाकी सेम होगा। और हमने ये जो 2 के साथ डिवाइड करना है अल्फा वैल्यू को वो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने से पहले ही करना होता है। इफ यू आर गिवन विथ स्टैंडर्ड डेविएशन दे मस्ट बी स्केयर टू गेट वेरिएंस, क्योंकि हमने कहा कि हम जो फार्मूला है हमारे पास एफ टेस्ट का वो वेरिएंस 1 डिवाइडेड बाय वेरिएंस 2 है। तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी हुई है तो हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को फार्मूला में पुट नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लेंगे और फिर वेरिएंस फाइंड करेंगे, फिर उसको फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। और हमने ये भी देखा कि जो हम हाइपोथेसिस यूज कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, 1 टेल भी हो सकती है वो 2 टेल भी हो सकती है। और सबसे मेन चीज के सैंपल्स आर सिलेक्टेड रैंडमली। It is not compulsory in F test that we collect data in sequence. जैसे हमने आउटलायर्स में देखा कि हमने डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज करना होता है, क्योंकि उसमें हम मीन फाइंड कर रहे होते हैं, मीडियन फाइंड कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई केस नहीं कि हम मीन फाइंड करें, मीडियन फाइंड करें, और क्योंकि हमने इसमें जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे होते हैं, वेरिएंस फाइंड कर रहे होते हैं, उसमें हम रैंडम डेटा भी अगर हमारे पास है उसको हमने जस्ट ऐड अप करना होता है, कोई फर्दर प्रोसेस नहीं करना होता मीडियन लाइक, तो इसलिए हम रैंडम डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमने देखा 2 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं, दोनों में हमने ये देखा कि हमारे पास रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं। तो इसकी भी कोई तो वजह होगी ना कि हमारे पास रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं, नेगेटिव क्यों नहीं आए? क्योंकि जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं, वेरिएंस की वैल्यूज होती हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। जब वेरिएंस की वैल्यूज ही हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होंगी तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव होगा एज कंपेयर टू नेगेटिव। दिस इज ऑल अबाउट एफ टेस्ट एंड आई गैदर ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज सोर्सेज, देयर रेफरेंसेज आर हियर। इफ you have any question then ask, otherwise I have 3 questions for all of you, so try to solve these. When we apply F test
only in one line. This is and second question is numerical. स्टैंडर्ड एविएशन 1 एंड स्टैंडर्ड एविएशन 2 की वैल्यूज दी हुई है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें दी हुई है, तो इसमें आपने बताना है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे. एंड व्हाई देयर इज नो मेजरमेंट एरर. थैंक यू क्लास फॉर लिसनिंग माय वीडियो.